Yes. How many questions I have given in homework? कौन से दो? अगर दो दिए तो so why am I getting only answer of one question? होमवर्क दिया था तो पूरा करना था ना. यस. चैतन्य, आपने भी मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है. तो जस्ट क्लास के पहले क्यों स्टार्ट करते हो होमवर्क करना? एटलीस्ट 1.5 आवर तो पहले करो. और ये दोनों क्वेश्चंस विल टेक मैक्सिमम 30 मिनट्स. ठीक है. ओके, सो दूसरा क्वेश्चन क्या था? मेजर लोगों ने सिर्फ पहला वाला ही कोड लिख के दिया है, विच इज लार्जेस्ट बिटवीन थ्री नंबर्स. एंड दैट टू आई आस्क्ड यू गाइस टू डू इट थ्री वेज, यूजिंग नेस्टेड, यूजिंग लैडर एंड यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. जो भी मुझे आउटपुट मिला भी है वो यूजिंग थ्री वेज तो है भी नहीं वो. एंड for those who have tried the second one, grade वाला, I just got answer from Myra. उसने attempt किया है but it's not correct, but ठीक है. Good. Let's start. I'll check Gemin 1 second. I checked off Ira. Gemin का चैतन्य ने एक ही भेजा है, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स वाला, यूजिंग नेस्टेड एंड यूजिंग लैडर. वेरी गुड. I got from Rajveer. Then I guess सना ने भी भेजा है. Okay, very good. Is Sana in the meeting? Yes, Okay, I'll just check your code. Your nested if else is perfect.
आपके दोनों सारे कोड्स करेक्ट हैं, वेरी गुड सना. Thank you. इवन शी डिड द सेकेंड क्वेश्चन यूजिंग इफ एल्स एंड स्विच केस, वो भी करेक्ट है इनका. सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक है, बट ठीक है, वो उतना मैटर नहीं करेगा. गुड. Ma'am, if you don't mind, can you just tell me that mistake? So I'll just rectify that. Sorry, I couldn't hear you properly. I said, can you please tell me my mistake so that next time I'll Yes, we keep will in mind that. discuss right now only. We will discuss this grade wala question because major students have not attempted that grade question. So we will quickly do the grade question. Okay, ma'am. Okay, so for revising C++, I have already shared the notes with Sir. I'll ask him to share it with you all of C++ as well as HTML का तो आप लोगों को मिल ही गया होगा नोट्स. मैं इसके भी नोट्स भेज देती हूँ C++ के लिए भी. ठीक है. ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है ग्रेड वाला. व्हाट इज द क्वेश्चन. यूजर से हमें मार्क्स लेने हैं. एंटर मार्क्स. सो स्टूडेंट जो भी मार्क्स डालेगा इंट मार्क्स, वो हमें सीन करना है. सीन मार्क्स. नाउ वट एवर द मार्क्स इज, सी this question, this program is very very easy if you do it with if else. if else में आपको ladder if else लिखना है. if marks greater than, guys, next time I won't be allowing you to enter the meeting uh, post 15 minutes. This is the last time I'm allowing. तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को प्लीज इन्फॉर्म कर देना कि जो भी रहेगा, जिसको भी आना है, 15 मिनट लिंक के 15 मिनट बाद तक ही सिर्फ अलाउ. ठीक है. अभी जो भी एंटर करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ देम. Okay, so if marks greater than equal to 90 and logical, and if marks less than equal to 100, so we need to print Cout distinction. Else if marks, Sana, can you please send the question ka wo table? I'll just see the table. Like which I have solved. Grade वाला जो table था ना, that table I'm asking. Yeah, I'll just send you. Yeah. ओके. मिल गया मुझे. चलेगा सना, मत भेजना, मिल गया. थैंक्स. ओके, सो फ्रॉम 81 इक्वल टू 81, लॉजिकल एंड मार्क्स लेस देन equal to 89, Cout A grade, semicolon. Now we can just copy paste this thing for 60 to 79, for 40 to 59, and then we will need one else. That is for Cout fail. ठीक है. सो योर ए ग्रेड आ गया, इधर आया 60
to 79. Then we have from 40 till 59, and below 40, also over here, I'll write less than 40 fail. And what if a user enters a value which is in negative or a value which is more than 100? So we do not want, that वो उसके लिए भी fail बताए. अगर हम more than 100 है तो हमें ऐसा चाहिए see out that it is invalid marks. Invalid marks. ठीक है? A, B, C and fail. ठीक है, तो ये हो गया अपना कोड फॉर यूजिंग नॉर्मल इफ एल्स. iostream.h C++ turbo C. मार्क्स डाले मैंने 68. B grade because it is greater than 60 and less than 79. Once again we will run. We will enter marks as 108, 106, invalid marks. Once again we will run. We will write 8 fail, 80. 80 पे क्यों इनवैलिड आया? ओके, बिकॉज 80 इज ओवर हियर, 80 आएगा, 81 नहीं, बिकॉज हमने कहीं पे भी इसको केटर ही नहीं किया है. ठीक है, इसीलिए वो वहां पे रॉन्ग हो गया. एट्टी ए ग्रेड. समझ में आया ये वाला? यस गाइस. यस आयुष, बराबर है आपका कि अगर आपने -1 डाला तो वो लेस देन 40 करे कंसिडर करेगा एंड वो फेल आएगा. बट अगर ग्रेटर देन 100 आ रहा है कोई भी वैल्यू तो हमें उसके लिए चाहिए इनवैलिड मार्क्स. ओके, सो दिस इज योर code for a grade program but using if else. So quickly take a screenshot so that we don't waste time in typing it out or writing it down. एक screenshot ले लो, then in the same code I'll do using switch case. Done with the screenshot? Okay. So now I'll comment this thing out. So अगर अभी हमारे पास मार्क्स जो आए, सो आई थिंक आयरा आपने लिखा था मार्क्स एंड सारे केसेस बनाए. केस 100, मतलब 90, 91, सारे नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 आपने पहले डॉट 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 किया, यानी कि आपको 100 केस बनाने पड़ेंगे, है ना. एंड देन इट डिफॉल्ट होगा फॉर इनवैलिड मार्क्स. और आपने नो डाउट उधर ही ब्रेक ये लिखा है, ब्रेक कीवर्ड लास्ट में जहाँ पे आप ये ग्रेड प्रिंट कर रहे हो. ठीक है, सो आपने ट्राई अच्छा किया, आपने लॉजिक अच्छा बिल्ड किया कि मैं उधर ही ब्रेक लिखूं जहां पर नेसेसरी हो. बट एक और चीज जो आप स्मार्ट वर्क कर सकते थे, आपको 100 केसेस ना लिखना पड़े. इफ यू रिमेंबर द syntax of using switch case, either we write over here a variable or we write an expression in the round bracket of switch. So if I divide the number by 10, then I discard the last digit. हम लास्ट डिजिट डिस्कार्ड कर देते हैं, हमें सिर्फ फर्स्ट डिजिट मिलती है. सो अगर आप अभी यहाँ पे भी देखो, ये जो मैंने यहाँ पे रखा है टेबल नीचे इफ एल्स का, इसके अंदर क्या है, 9 की जो सीरीज है ना, 9 की सीरीज एंड 10 की सीरीज में हमें डिस्टिंक्शन चाहिए. पूरा 8 का जो सीरीज है, 80 से लेकर 89, यानी कि 8 के सीरीज में ए ग्रेड, 6 से लेकर 7 यानी कि 6 का सीरीज, 5 7 का सीरीज, दोनों के सीरीज में,
4 से लेकर 5, 40s का सीरीज एंड 50s का सीरीज, 4 एंड 5 वी हैव सी ग्रेड, एंड देन लेस देन 40 यानी कि 1, 2 एंड 3 प्लस 4, सॉरी 4 हम नहीं लेंगे, 4 हमें ऑलरेडी इधर मिल जाएगा, 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 इज फेल, एंड एल्स इनके अलावा और कुछ भी हुआ दैट विल बी योर इनवैलिड। तो हमारे स्विच केस में हम बनाएंगे सबसे पहले भी स्टार्ट case by, you can start by 1, 2, 3, it is okay, you can start by 9 and 10, that is also okay, but I'll start by 1, case 1, case 2, case 3, and then we will print cout fail with a break. So over here we are done with case 4 and case 5, जिसमें हमें लिखना है C rate 6 and Jamin, can you please again put a message? Hi message करोगे क्या? I cannot see your code. आपने भेजा होगा बट पता नहीं, मे बी वो बहुत नीचे पुश हो गया होगा. Yeah, I'll just check your code. आपने डियर सबसे पहले तो इफ एल्स का लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स वहां पे ही मिस्टेक कर दिया है, दैट इज योर रॉन्ग. फिर largest between 3 numbers using ternary operator is absolutely correct, that is very nice, good. स्विच केस में यस, सो स्विच केस का रॉन्ग है, रीजन बीइंग आपने जो भी कोड लिखा है ना स्विच केस के अंदर, आपने केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 6 केसेस लिखे, एंड आप ले रहे हो यूजर से मार्क्स. मार्क्स 1 to 6 के बीच में नहीं होगा, मार्क्स कोई भी नंबर हो सकता है ना. मार्क्स है 83, तो 83 कौन से केस पे मैच हो रहा है? वो मैच ही नहीं करेगा 83 कोई भी केस पे. आपने केस 1 के अंदर आपने लिखा है मार्क्स अगर 100 है, तो केस 2 में लिखा है ग्रेटर देन 90 है, या केस 3 में, बट हाउ विल इट विल गो इन केस 3, क्योंकि 83 तो 3 से मैच ही नहीं हो रहा. ठीक है, आपको समझा आपने क्या मिस्टेक की है जेमिन? ओके, सो यहां पर हमने बी लिख दिया, बी ग्रेड, एंड देन केस 8 की सीरीज में वी हैव ए, केस 9 के सीरीज में वी हैव डिस्टिंक्शन, बट डिस्टिंक्शन के बाद में हमें 100 मार्क्स भी आया एग्जैक्ट, तो भी हमें चाहिए था. तो आप बोलोगे यहाँ पे मैम इधर केस 10 भी डालो, राइट, केस 10 भी डालो डिस्टिंक्शन के लिए. सो व्हाट इफ यूजर ने डाला मार्क्स एज 106, जो नीचे वाले चीज में मैंने यहाँ पे 106 डाला तो मुझे इनवैलिड मार्क्स दिया था, सेम वे मुझे इधर भी इनवैलिड मार्क्स आना चाहिए. डिफॉल्ट केस में हम लिख देते हैं इनवैलिड मार्क्स, बट 106 पे इनवैलिड नहीं देगा, क्यों? क्योंकि 106 डिवाइड बाय 10 इज केस 10, तो उस पे तो क्या लिखा है डिस्टिंक्शन, जबकि वो डिस्टिंक्शन है नहीं, इट्स एन इनवैलिड मार्क्स. सो ओवर हियर वी विल रिमूव केस 10, and to check whether the user have secured exact 100, we will use one if. marks अगर equal to 100 है तो आप प्रिंट कर दोगे डिस्टिंक्शन, else else में पूरा ये आपका स्विच केस आ जाएगा. सो हमने नो डाउट यूज किया यूजिंग स्विच केस, बट इन द स्विच केस ऑल्सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ इफ, ओनली टू चेक इफ द मार्क्स इज इक्वल टू 100. अगर 100 है तो डिस्टिंक्शन है, एल्स अगर कोई भी दूसरे मार्क्स है
तो आप उसको डिवाइड बाय 10 करके केसेस में जा रहे हो, एंड इवन इफ द मार्क्स इज greater than 100 or ninth down, in this case if it is less than 100, then also it will print invalid marks. So I guess Ayush, you asked me that अगर नेगेटिव में होगा तो स्विच केस में वो भी चेक कर लेगा invalid marks. So -5 invalid marks, +5 invalid marks. सॉरी, +5 के लिए ओके, 1 सेकेंड, हमने केस ही नहीं क्रिएट किया है, केस बनेगी 0 ओवर हियर, बिकॉज बिटवीन 1 to 9 आप जो भी नंबर को डिवाइड करते हो तो वो 0 ही रिमाइंडर देगा ना वहां पे, मतलब आंसर 0 ही आएगा. सो केस 0 वी विल क्रिएट फॉर नंबर्स बिटवीन 1 to 9. फेल. सो 1 वाला केस किसके लिए हुआ? फॉर 11 से 19 के लिए 1, 2 फॉर 20 से लेके 29, 3 फॉर 30 से लेके 39 के बीच में. ठीक है, सो ऐसे यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे ऊपर. क्लियर है? समझ में आ गया? सना, आपको समझा आपने क्या मिस्टेक की थी? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड. हमने और कौन से प्रोग्राम्स कर लिए थे कल क्लास में? इफ एल्स स्विच केस सब कंप्लीट कर लिया था? यस, इफ एल्स इन स्विच केस. ओके, सो आज हम अभी स्टार्ट करते हैं. एक ब्रेक एंड कंटिन्यू पे एक एक प्रोग्राम ले लेंगे जस्ट टू सी क्या उसका सिंटेक्स है. ओके, फॉर दोज हु वांट टू take a screenshot of this, I'll just little minimize this page. आप इसका screenshot ले लो please. Done? Okay. Now next thing is break and continue के ऊपर हम एक एक प्रोग्राम ले लेते हैं. सो अभी हमें लेट्स क्रिएट अ लूप. इंट आई बनाते हैं एक वेरिएबल. फॉर लूप आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से. 1 सेकेंड, वी डिडंट डू लूप्स राइट? फॉर वाइल इज पेंडिंग कि लास्ट क्लास हमने किया था ना प्रोग्राम्स फॉर के वाइल के. एक्चुअली आईटी स्टूडेंट्स का भी जावा स्क्रिप्ट में ये चल रहा है, सो आई एम गेटिंग क्वाइट कंफ्यूज्ड, सो आस्किंग यू. फॉर एंड वाइल लूप बाकी है हमारा सीएस में. ओके ओके ओके, देन बिफोर वी डू ब्रेक एंड कंटिन्यू हमें फॉर वाइल लूप लेना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट. सो ये कौन से स्टेटमेंट्स में आता है? फॉर वाइल या स्विच केस, इफ एंड एल्स, ये सब कौन सी मेन हेडिंग के अंदर आ रहे हैं सारे? कौन सी हेडिंग के अंदर है ये सब जो भी हमने पढ़ा? Control statements, very good. Control statements, also known as control structures. We have 3 types of control structures: conditional statements, iterative statements and branching statements. 3 टाइप के, जिसमें से हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स का पहला पार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर लिया. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे
just 1 minute. बी है इटरेटिव। इटरेटिव स्टेटमेंट्स। इटरेटिव का मतलब क्या होता है गाइस? इटरेटिव का मीनिंग, इटरेटिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग, इटरेटिव मतलब होता है लूप या रेपिटेटिव। रेपिटेटिव, आई एम श्योर आई एम मेकिंग मिस्टेक इन द स्पेलिंग, बट ठीक है, रेपिटेटिव। whatever. Okay. यस, इटरेटिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? यस गाइस, रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? क्या काम करने में हेल्प करेंगे? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? सो Yes, I'm audible. हाँ, सो अगर हमें कोई एक इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है कंटिन्यूसली, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू राइट द वर्ड कंप्यूटर 10 टाइम्स, आई वी गोइंग टू राइट सी आउट 10 टाइम्स, या आप कॉपी पेस्ट करोगे सी आउट 10 टाइम्स? चलो आप लोग बोलोगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट अगर वो 1000 टाइम्स लिखना होता तो वो तो 1000 टाइम भी कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा। सो अगर कोई एक स्टेटमेंट या कोई एक टास्क हमें बार बार परफॉर्म करना है, तब हम यूज करते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स, विच इज ऑल्सो नोन एज लूपिंग स्टेटमेंट्स और योर repetitive statements. So here we have three types of loops. One is for, while, and do while. For, while and do while. ठीक है, ये तीन टाइप के स्टेटमेंट्स हमारे पास है, फॉर, while and do while. नाउ सिंटैक्स हम देखेंगे सबका, क्विकली देखेंगे। सिंटैक्स में आ गया फॉर, so here is the syntax for initialization, condition, increment, and decrement. Now, if you see, there's a semicolon in between. Initialization हुआ, semicolon यानी कि full stop. Second condition, full stop. Increment, decrement, and then ये statements के बाद में of course semicolon होगा, जितने statements है उतने हर statement के नीचे. Then second syntax है जहां पे आप इधर ही एक semicolon दे रहे हो. ठीक है, तो सबसे पहले तो पहले सिंटेक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। पहला सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल आई हमारे पास एक बनाया हुआ है, इंट आई सपोज, ठीक है, इंट आई बनाया है, डिक्लेयर किया हमने हमने यूजर से कोई इनपुट ही नहीं लिया, इनपुट लेने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सीधा आई की वैल्यू स्टार्ट की 1 से, आई को हमने इनिशियल कंडीशन बोल दिया, जब तक वो 5 नहीं होता आप प्रिंट करो आई की वैल्यू, एंड हर बार प्रिंट करने के बाद में एंडल न्यू लाइन पे जाओ और आई प्लस प्लस कर दो। आई प्लस प्लस करना मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 करना। सो नाउ आई विल बिकम 2। इज योर 2 लेस देन इक्वल्स टू 5? ट्रू। सो अगेन प्रिंट I, that is 2, so 1 and 2 print हो गया न्यू न्यू लाइन पे, I plus plus I will become 3,
1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मिला मुझे आउटपुट में. I plus plus I will become 6. The moment I become 6, is 6 less than equals to 5? Is 6 less than equals to 5? It becomes false. The moment it becomes false, we come out of the for loop. ठीक है, हम लूप से बाहर आ जाते हैं इस केस में. तो ये हो गया आपका पहले वाले सिंटेक्स का एग्जाम्पल. सेकेंड सिंटेक्स, जहां पे हमारे पास सेमीकोलन कहां पर है, इधर है. आपने यहां पे लिखा इंट आई बनाया, डिक्लेयर किया. आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है. अब आई अभी सेमीकोलन का मीनिंग क्या हो गया इधर, इसका मतलब ये है कि मुझे थर्ड इधर जाना ही नहीं है. Now, when you actually see the syntax of for loop ना, this is your step 1. ठीक है, ये आपका step 2 है, ये आपका step 3 और ये 4 है. सो ये ऐसे लूप हो रहा है. 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 2, 3 4, 2 3 4. सो दिस इज ओनली वंस, ये एक बार हुआ. ये सेकेंड टाइम चेक किया, मतलब सेकेंड स्टेप चेक करना. थर्ड स्टेप प्रिंट करना. फोर्थ स्टेप इंक्रीमेंट करना. तो ये जो साइकिल है ना वो ऐसी है. ठीक है. नो ओवर हियर व्हेन वी राइट अ सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब होता है फुल स्टॉप, बंद करो, आगे मत जाओ. तो ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है. अब क्या हो रहा है, इधर सेमीकोलन दिख रहा है हमको, हम आगे जाएंगे ही नहीं. ये स्टेप 3 पता ही नहीं है. दिस ओनली बिकम्स 3 एंड 4. यानी कि आप इसको स्टेप 3 बोलो, यार आपको 4 बोले तो 4 बोल सकते हो, बट 3 करके कुछ नहीं है फिर. If you call this step as 4, then you do not have step 3. Clear है. तो अभी हम इसको, I'll just tell that it's step 3. So 2 3 पे ये बार बार कंटिन्यू करते रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती. ये फॉल्स कब होती है, ये कंडीशन फॉल्स कब होती है गाइस, कब फॉल्स होगी. greater than 5. Yeah, that is, it becomes 6 whenever the number becomes 6, not more than 6. When the number I becomes 6, तभी. सो लूप से बाहर आ गए. अब हमने बोला आई की वैल्यू प्रिंट करो, तो आई की वैल्यू क्या थी, 6. ऊपर वाले में हमें आंसर आएगा 1 2 3 4 एंड 5. बट इस केस में हमें आंसर आया ओनली एक ही आंसर, जिसका नाम है 6. दैट्स इट. तो समझा आपने क्या किया यहां पर. यस गाइस. नाउ वी हैव अनदर सिंटेक्स. तो पहला सिंटेक्स था नॉर्मल वाला, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. अगर ऐसा भी आप लिखते हो ना ये चीज भी, तो ये रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है. इसमें क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट लूप में जाएगा. किस में जाएगा, इनफाइनाइट लूप में. फोर्थ, फोर्थ इज वन सच वे ऑफ राइटिंग दैट अगर आपने दो इनिशियलाइजेशन करना है तो आप कॉमा सेपरेटेड कर सकते हो. दो कंडीशन देनी है तो आप लॉजिकल एंड या लॉजिकल और यूज कर सकते हो. और अगर आपको दो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना है, अगेन आप कॉमा यूज कर सकते हो इधर. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड सिंटैक्स. ओके. नाउ दिस इज योर अनदर लूप विच इज while loop. While loop, before I go ahead with the while loop, any doubts in for loop? for loop नहीं समझा हो ऐसा कुछ है, for loop आगे समझ में. Everybody, I just don't need answer from one person. यार 91 पार्टिसिपेंट्स है, 4 लोग ही आंसर दे रहे हैं. Okay, I'll explain the second once again. So ये वाला यहाँ पे जब आप सेमीकोलन डालते हो ना, तो इसका मतलब क्या है, मेरे लूप का स्टेटमेंट नहीं है, जिसको रिपीट करना है स्टेटमेंट नहीं. तो क्या हो रहा है, रिपीट, यही स्टेप्स रिपीट हो रहे, 2 3 2 3 2 3.
अब ये क्या काम का मैम, इसमें तो डायरेक्ट I6 है, वही कर लो ना। ये क्या काम का, आप आगे जाके हायर स्टडीज में इंजीनियरिंग में कभी भी पढ़ते हो ना, तो वहां पर ये टाइप का लूप यूज होगा, जिसमें लूप के बाद में सेमीकोलन है। तो अगर आपको कोई कंडीशन तक पहुंचना है ना, तो आप फॉर लूप यहाँ पर ये केस में सेमीकोलन के साथ में यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, सो हाउ कम आंसर इज 6? बिकॉज आप जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हो, सो I1 है, कंडीशन ट्रू है, जब तक I5 है, सो इज 5 लेस देन इक्वल्स टू 5? इज दिस ट्रू? 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू है ना? तो ट्रू है, तो अभी आप I प्लस प्लस करोगे, I विल बिकम 6। इज 6 लेस देन इक्वल टू 5? दैट बिकम्स फॉल्स। सो इसीलिए लूप से बाहर आके एक ही बार जो आई प्रिंट करना उसके आंसर होगा, उसका आंसर होगा 6। ध्रुविन, समझा आपको मैं क्या, मैंने जो अभी जस्ट रिपीट किया, दैट सेमीकोलन मीनिंग ओवर हियर इज टू रिपीट स्टेप 2 and 3 अगेन एंड अगेन। यस, समझा गाइस? हाँ देखो ना, सेमीकोलन अगर आप नहीं डालते हो उधर लास्ट में, तो वो पूरा हर बार लूप चलेगा, हर एक इटरेशन पे चलेगा, हर एक इटरेशन पे। इधर तो कैसे सिर्फ लास्ट टाइम ही चला, दिस इज ओनली वंस इट गॉट एग्जीक्यूटेड। अगर देखो इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, तो सेकेंड टाइप का सिंटेक्स आप पूरा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को सेकेंड टाइप का सिंटेक्स नहीं आने वाला। बट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना, याद रखना कि व्हाट इफ आ गया एग्जाम में, तो ऐसा पूछ लिया कि क्या ये इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस, तो यू विल राइट एरर। क्यों? क्योंकि सेमीकोलन आपने यहाँ पे पेपर में दिया है सेमीकोलन, जबकि सेमीकोलन तो आता ही नहीं लूप के बाद में, रॉन्ग। लूप के बाजू में आप सेमीकोलन लिख सकते हो, ये वैलिड सिंटेक्स है, इनवैलिड नहीं है। लूप के अंदर बिना कुछ लिखे दो सेमीकोलन डाल सकते हो, ये भी वैलिड सिंटेक्स है, इनवैलिड नहीं है। ये रीजन से मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, रीजन समझ में आया क्यों हमने यहाँ पे देखा ये चीजों को? आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये काम आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाइल लूप का सिंटेक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यस, व्हाइल लूप सिंटेक्स। हाँ युग, अगर आपने सेमीकोलन नहीं डाला तो आई की वैल्यू 1, देन 2, देन 3 टिल n, जो भी लास्ट नंबर है ना उधर तक चलेगा, वो प्रिंट करेगा। ठीक है। व्हाइल लूप में अम, सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, देन सेकेंड स्टेप है कंडीशन, थर्ड स्टेप है स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेप है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसको हम अपडेटिंग द वैल्यू भी बोलते हैं। नाउ डिफरेंस है ना फॉर ऑन व्हाइल लूप में, क्या है कि फॉर लूप हॉरिजॉन्टली लिखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, देन सॉरी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर नीचे आओ स्टेटमेंट्स, फिर ऊपर करो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर 2 3 4 पे लूप होते जाएगा। इसके अंदर ये वर्टिकल है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो क्यों है दो अलग अलग लूप? क्यों खाली वाइल लूप ही नहीं है हमें, सॉरी सिर्फ एक ही लूप, ईदर ऑफ द लूप्स क्यों नहीं है, ओनली वाइल या ओनली फॉर? व्हाई डू वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स? डू यू नो? किसी को पता है कि क्यों ऐसा? समवन हु हैज स्टडीड इन स्कूल, ICSE बोर्ड। Why do we have two types of loops? Or since there's another third type of loop,
do while. Why do we have third type of loop also? Why do we have for, while and do while? एक ही लूप क्यों नहीं? काम सबका एक ही है ना। मुझे अगर वर्ड कंप्यूटर को 50 बार प्रिंट करना है तो मैं फॉर लिखूं, वाइल लिखूं या डू वाइल, कोई भी एक लिखूंगी, मेरा काम हो जाएगा। वाई डू वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स? जैसे हमने स्विच केस में देखा था ना कि स्विच केस इतने टाइप के क्यों है। सॉरी, इफ एल्स एंड स्विच केस में दोनों क्यों है, लैडर इफ एल्स भी है, स्विच केस भी है। आयुष, यू आर नॉट, यू आर partially correct, you're not 100% correct. So he answered that while is for single condition and for is for multiple conditions. That's कंडीशन एक आंसर राइट है इसमें से, पार्शियली करेक्ट, बट सिंगल या मल्टीपल कंडीशन से लेना देना नहीं है। आप वाइल में भी है ना लॉजिकल एंड डाल डालकर मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। ठीक है, आंसर कंडीशन पे ही है। सो करेक्ट आंसर ये है, जब फॉर लूप का भी यूज करना है, जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स पता है, मुझे पता है कि मुझे 10,000 टाइम्स कुछ टास्क परफॉर्म करना है, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12, 20, 18, 23 टाइम्स कोई टास्क करना है, तो हम यूज करेंगे आंख बंद करके फॉर लूप। वेन द फोकस इज ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार चलाना है कोई चीज को, तो यूज होगा फॉर लूप। when the focus is on the condition, so as a developer I do not know कब ये नंबर, एक एक्स नंबर जीरो बनेगा, मुझे नहीं पता। कितनी बार लूप चलेगा, उतनी बार चलाते चलाते नंबर जीरो बना, आई हैव नो आइडिया। जितने आपने कोड्स किए, मतलब बार बार एग्जीक्यूट किया, सपोज सेकेंड टाइम में नंबर जीरो बन गया, तो लूप से बाहर आ जाओ। कोई एक ऐसा नंबर है जिसको आपने 50 बार लूप चलाया तो भी वो जीरो नहीं बना, सो मेरा फोकस किस पे है? कंडीशन पे। सो व्हेन द फोकस इज ऑन द कंडीशन, दैट टाइम वी शुड यूज व्हाइल लूप। So Ayush, when you answered me, while is for single condition, nahi. While is used when the focus is on the condition, and for is used when we know the number of iteration. Are we clear? Yes. यहाँ पे हम I equals to 1. तो इसमें स्टेप 1 क्या है? int I equals to 1. स्टेप 2, I less than equals to 5. ट्रू है, प्रिंट हो गया I की वैल्यू 1. I plus plus I will become 2. And then again go back to the condition, print करो I plus plus 2 3 4 2 3 4, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ प्रोग्राम्स लेते हैं। लास्ट टाइम की तरह मैं सारे पहले क्वेश्चंस लिख लेती हूँ ऊपर एक साथ में, एंड देन हम प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। एनी डाउट्स गाइस? आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है तो। ओके,
इनमें से कौन से प्रोग्राम्स आप लोग ने ऑलरेडी किए हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आते हैं या इजी है, डुएबल है? यस, कौन से क्वेश्चंस लग रहे हैं आप लोगों को जो ऑलरेडी आते हो, या नन, कुछ भी नहीं आ रहा? 3 4 5 आते हैं, लास्ट 2 आ रहा है, हैव डन। बट ये आता है यानी कि लॉजिक समझा है या बाय हार्ट किया है? एग्जाम थी कॉलेज में तो इसलिए बाय हार्ट किया या लॉजिक समझ के किया है? लर्न। ओके। ओके, ठीक है। तो अभी हम सो मैं इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा लॉजिक समझा या लर्न किया, क्योंकि जो पहला दो है ना वो सबसे इजी है, एकदम इजी है। सो अगर आप लोग बोल 3 4 5 आ रहा है, लास्ट 2 आ रहे हैं, यानी कि पहला दो भी तो आना चाहिए ऑटोमेटिक, बिकॉज वो तो एकदम इजी है, उसी के ऊपर बेस है सब कुछ। एंड ठीक है, चलो आई स्टार्ट द विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन की वैल्यू हमें पता है क्या? हमें एन नहीं पता, ठीक है। सो हम यूजर को बोलेंगे एन हमें प्लीज दे दो, एंटर अ नंबर। हमने वो एन ले लिया। अब इस नंबर को आने के बाद में मुझे नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से लेकर एन तक जितने नंबर आते हैं सब मुझे प्रिंट करना है। ये तो वही कोड है ना जो मैंने अभी लिखा था जैम बोर्ड पर, है ना? ये तो वही कोड है जो हमने जैम बोर्ड पे लिखा है। फाइव, 1 2 3 4 5, 20, 1 2 3 till 20। ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का कोड है। सेकेंड कोड क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम to print the sum of first and natural numbers. By the way guys, I'm just, I don't want कि मैं ही सॉल्व करती जाओ, आप लोग सिर्फ देखो, स्क्रीन के सामने बैठ के देखो, नहीं। आई डोंट वांट दैट। अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आंसर। पहला वाला कोड हुआ, समझा आपको कि नहीं समझा? इफ यू वांट मी टू रिपीट देन प्लीज टेल मी, डोंट वेट फॉर मी टू आस्क यू कि समझा नहीं समझा। सो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रिंट करना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, एन प्रिंट एन तक, यानी कि नंबर मुझे नहीं पता, यूजर से लेना है। आई वेरिएबल बनाया लूप चलाने के लिए, एन यूजर से इनपुट लेने के लिए, सीन में एन आ गया, लूप चलाया आई वेरिएबल से, 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? एन तक गया, इक्वल टू एन। एंड हमने सी आउट में प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू। समझा? ओके, ग्रेट। नाउ टू प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो अभी इस केस में 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं करना, मुझे डायरेक्टली इनका एडिशन, सम, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये प्रिंट करना है, वो भी
अगेन माय बैड, 1+2+3 ये नहीं प्रिंट करना, इसका आंसर। सो 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, 10+4 5, मुझे डायरेक्ट आंसर 15 चाहिए। यानी कि मुझे बार बार प्रिंट करना है या एक ही बार प्रिंट करना है? क्वेश्चन है बार बार प्रिंट करना है या एक ही बार? एक ही बार। तो जो लूप में हमने सी आउट लिखा, लेट अस रिमूव दैट सी आउट फ्रॉम लूप एंड प्लेस इट नीचे, बिकॉज लूप में तो लिख दोगे तो बार बार चलते जाएगा वो। और मुझे प्रिंट क्या करना है? आई वॉन्ट टू प्रिंट अ नंबर जो सम है। वो क्या है? सम। सो आई विल डू दिस थिंग दैट हम सम को इनिशियलाइज कर देंगे 0। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। देखो किसको ऐड करना है? आई वेरिएबल है ना, जो 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो मुझे प्लस आई तो करना ही था, ये तो पक्की बात है, ये प्लस आई तो मुझे करना ही है। ये सम के साथ में क्यों ऐड किया? यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ, ठीक है। और ये भी 0 भी, इसको भी मैं हटा देती हूँ। मुझे आंसर ऑफकोर्स सम में स्टोर करना है, मुझे सम ही प्रिंट करना है। किसके साथ में इसको ऐड करूं? ऑप्शंस है, ऑप्शन है आई के साथ में ऐड करूं, एन के साथ में, या सम के साथ में। अभी ऑफकोर्स मैंने आंसर बता दिया सम के साथ में, बट क्यों? क्यों लॉजिक बिल्डिंग? बाय सम। क्योंकि हमें प्लस ऑपरेटर है ना, बाइनरी ऑपरेटर है, एक साथ में 5 नंबर को ऐड नहीं करेगा। तो पहले वो 2 को करेगा, विच इज अभी आई स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी कि 1 के पहले वन नंबर कौन सा? 0। तो अगर आप बोलोगे कि मैम डायरेक्टली मैं 0 लिख देता हूँ ना, खत्म कहानी। 0+1, 1 गया, सेव हो गया सम में। 0+2, 2 सेव हो गया। 0+3, 0+4, 0+5, आंसर सम का आंसर क्या आया? 5। वो नहीं चाहिए था। आपने लिया एन, एन क्या है? 5। सो पहले एन होगा n+1, मतलब 5+1 6, 5+2 7, 5+3 8, 5+4 9, 5+5 10। एट द आंसर भी 10 आ रहा है। एन लेकर भी आई भी लिखोगे तो लास्ट में 5+5 10 ही होगा। सो वी डू नॉट नीड द दोज आंसर। कृष्णा आई डेंट अंडरस्टैंड, 1 और एन के साथ ऐड करेंगे, 1 से लेकर एन तक के बीच में जितने भी नंबर्स है सबको हमें ऐड करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइजेशन ऑफ सम कर दिया 0। 0+1 विल बी 1, सम में जाके स्टोर होगा। देन नेक्स्ट आई प्लस प्लस में आई विल बिकम 2, तो 1+2 विल बिकम 3, सम में क्या हुआ? स्टोर 3। 3+3 सम में क्या हुआ? स्टोर 6। 6+4 20, 10, 10+5 15। लास्ट में लूप के बाहर आके प्रिंट हो जाएगा 15। 15 8 डालेंगे तो 16, 15+6 21, 21+7 28, 28+8 36। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन में कोई डाउट है? एनीबॉडी? आई अगेन गॉट आंसर फ्रॉम 2 स्टूडेंट्स। हाँ, नो, बस सिर्फ 2 ही जनों ने आंसर किया है। आउटपुट में कैसे आएगा यहाँ पे देखो, अभी हमने लिखा 5 ना, तो खाली 15 आया। अगर आपको ऐसा लिखना है सम ऑफ फर्स्ट सो एंड सो नंबर इज, तो आप वो भी कर सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स इज सम। तो मैंने लिखा 5, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 15, लिखा अपन ने
9. Sum of first 9 numbers is 45 and so on. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. Next, third question. Write a program to print multiplication table of the user entered number. ये प्रोग्राम अभी आप लोगों को ट्राई करना है. आई एम गोइंग टू शो यू द आउटपुट. इसका मैं सिर्फ आउटपुट जैम बोर्ड पे बना के दिखाऊंगी. आप लोगों को अभी टाइप करके मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं. And those who do not have the laptop or a desktop, you can just write the code simply. But I want to see the output now. So output में होगा enter a number. Suppose number डाला 3. Multiplication table of 3 is 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 10 t. ये आंसर चाहिए मुझे. Into 2 into 3 into 4 into 5 till 10. 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4. पूरा आंसर चाहिए. This is how I want you guys to give me the output. अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ. बी फास्ट. 153 हुआ है. 157 तक मुझे मैक्सिमम कोड्स चाहिए. So those who want to see the question, here is the question. Write a program to print multiplication table of the user entered number. यूजर से नंबर लेना है और मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है. आउटपुट चाहिए मुझे इस फॉर्मेट में. एंटर नंबर, जो भी नंबर डाला वो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द नंबर इज टेबल प्रिंट होना चाहिए नीचे. दिस इज द वे आई वांट द आउटपुट.
sorry, few people have sent me the codes, and it is okay even if it is not 100% correct. लॉजिक बिल्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो लोगों ने ना एक सीरियस मिस्टेक की है, सी आउट के इन्वर्टेड कॉमास में बहुत मिस्टेक की है. यू शुड रन इन फ्रॉम योर ऑनलाइन जीडीबी पे से C++ टर्बो यहाँ से. ओके चलो आई एक्सप्लेन अभी. नाउ व्हाट पीपल हैव मेड द मिस्टेक. सबसे पहले तो ये समझो, आउटपुट पे जाते हैं हम, ठीक है. आउटपुट पे हमें क्या करना है, इधर मुझे ये लाइन ना बार बार देखो प्रिंट हो रही है. क्या प्रिंट, ये वाली लाइन मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ, ये एक ही बार लिखी गई. इज दिस रिपीटेड अगेन एंड अगेन? नो, इट्स रिटर्न ओनली वंस. व्हाट इज गेटिंग रिपीटेटिव? this line, number multiplied by I, which is 1 to 10 equal to 3, जो भी आंसर है, ठीक है. नंबर इनटू आई, ये चीज हमको बार बार करनी थी. सो पीपल हैव मेड मिस्टेक्स इन टू प्लेसेस. मेजर मिस्टेक दो जगह पर की है. लोगों ने ये लाइन लूप में ही नहीं लिखी है, ऊपर वाली लाइन लूप में लिखी है. एंड जो दूसरी मिस्टेक्स है वो ये प्रिंट करने में मिस्टेक है, ठीक है. सो हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. so we just need one number. वन सेकेंड, मुझे एक और लोग स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है. आई जस्ट होप आप लोग जो भी मुझे कोड भेज रहे हो ना, खुद से करके लॉजिक बिल्डिंग खुद का कर रहे हो, ना कि चैट जीपीटी या कोई एआई टूल या कुछ गूगल करके कर रहे हो. इट्स नॉट, मेरा मेरा कहीं पे लॉस नहीं है इस चीज में. जस्ट टू लेट यू नो गाइस, मुझे 10 तक चाहिए. सो आई डू I less than equal to 10. Now we need to print something before the loop, that is multiplication table of n is एंडल. हम न्यू लाइन पे जाना है, न्यू लाइन पे गए हम, उसके बाद में हमें बार बार प्रिंट करना है. we need to print something again and again. what is that something? सबसे पहले तो प्रिंट हो रहा है आपका नंबर. क्या नंबर है? n. फिर प्रिंट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का साइन, विच इज एस्ट्रिक, दैट इज एस्ट्रिक. एंड देन प्रिंट हो रहा है आई वेरिएबल, विच इज 1 2 3 till 10. देन प्रिंट हो रहा है इक्वल टू. फिर प्रिंट हो रहा है n into i, दैट इज योर प्रोडक्ट. और इट इज गोइंग, एंड इट इज गोइंग एवरी टाइम ऑन द न्यू लाइन, तो इसलिए एंड है. एंटर नंबर 5 डाला, 5 का टेबल. नाउ टू मेक अ लिटिल मोर रीडेबल, जस्ट टू मेक इट मोर रीडेबल, सी आउट में
एस्ट्रिक्स के पहले स्पेस, इक्वल टू के पहले स्पेस। Number 7, 7 का टेबल, multiplication table of 7 is. So you guys can take this value also from the user कि कहाँ तक आपको टेबल प्रिंट करना है, 10 तक, 20 तक, 30 तक, वो भी आप यूजर से ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे एक और वेरिएबल p, so I can write these two things one more time. Enter a number till you want the table to be printed. वो हमने ले लिया p वेरिएबल में, और इधर आप 10 के जगह पे लिख दोगे p. So if I want to print 3 का टेबल बट टिल 20, तो 3 1 से लेकर 20 तक टाइम्स इट विल रन. बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रिंटिंग. जो जस्ट डोंट राइट सी आउट में n/i, वो नहीं चाहिए, टेबल प्रिंट होना चाहिए. क्लियर है? कोई डाउट? आर्या, राजवीर, आप लोग को मिस्टेक समझ में आई? आपने क्या किया था? जिसको भी मैंने रिप्लाई नहीं किया ना गाइज, आपने या तो ऑलमोस्ट करेक्ट लिखा है, थोड़ा बहुत इन्वर्टेड कॉमास में मिस्टेक है, सो मैं पर्सनल पे भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट वांट यू टू गाइज कि आप देख लो सिर्फ इसको. सर ना, आई थिंक आपने पहले वाला कोड ही मुझे गलत भेजा है, जो भेजा था ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला था. व्हाट? Yes, आया? ma'am. ओके, ठीक है. फोर्थ So, फैक्ट, mistake है क्या code में? सॉरी, Is there a mistake in the code which I have sent you? नो, द थिंग इज, जो वेरी फर्स्ट कोड आपने भेजा ना, दैट इज एन इनकम्प्लीट कोड ना. You have just opened the curly bracket of the loop and then you have not completed anything, not written anything. And in the second Okay. program, some of, Rewrite it and I'll send you. okay. So second code is proper. First wale bhi you made that mistake. You have to write a C out. You can write this 1, 2, 3 wala later on also. Just need to take a screenshot. For timing, just take a screenshot. You can write down this thing later on also. Okay. 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 Now the fourth question is to print factorial of a number. Now what is a factorial? एंटर नंबर लेना है हमको यूजर से. ठीक है, सम में हम 1 + 2 + 3 कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं. यहाँ पर क्या करना है? इधर प्लस के जगह पे हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है हमको. सो अगर मेरे पास सम वेरिएबल है, जस्ट चेंज दिस वेरिएबल टू फैक्ट. फैक्ट, आई चेंज सम टू फैक्ट. फैक्ट एंड प्लस के जगह पे वी वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन. लेकिन ये 0 से इनिशियलाइज्ड है. सिंस इट इज इनिशियलाइज्ड टू 0, everything will become 0 because 0 into 1 will become 0, 0 into 2 is 0, 0 into 2 आंसर क्या आएगा? 0. तो इसको हम चेंज कर देंगे टू 1. सो 1 into 1 1 स्टोर हो गया फैक्ट में वैल्यू 1. 1 into 2 2 फैक्ट में स्टोर हुआ 2. 2 into 3 6 फैक्ट में स्टोर हुआ 6. 6 into 4 24 स्टोर हो गया. 24 into 5 120 स्टोर हो गया. आई प्लस प्लस होगा, आई विल बिकम 6. 6 लूप से बाहर आ गए. फैक्टोरियल ऑफ 5 is
fact. That is 120. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाले में हमें कुछ इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ही नहीं ले रहे ना। इधर इधर आप मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ एन और आई तो ले रहे हो। आई यू नो यू आर नॉट स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ एन इन टू आई समवेयर। इवन इफ यू वांट टू, आपको सपोज आंसर बनाना है, इधर एक ए एन एस बनाना है, तो आप इधर ए एन एस इक्वल्स टू एन इंटू आई करके आप सिर्फ यहाँ पर इसके जगह पे डायरेक्टली ए एन एस भी प्रिंट कर सकते हो ना। वाई डू यू वॉन्ट टू इनिशियलाइज ए एन एस? आप ए एन एस को कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग योर वेरिएबल, आंसर वेरिएबल को कहीं यूज नहीं कर रहे हो। Great. Fibonacci series, the most important topic. Fibonacci series. क्या होती है फिबोनाची सीरीज? Sum of two previous numbers and the series starts from 0 and 1. So जैसे हमें पता है कि ये जो सीरीज है ना, ये स्टार्ट होगी हमेशा 0 और 1 से ही, ठीक है। दिस विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 and 1. सो जो पहला नंबर कौन सा सीरीज का? 0 है, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। थर्ड नंबर क्या होगा? एडिशन ऑफ फर्स्ट टू, 0 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 2, 5 + 3, 8 + 5 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट में जाएगी आपकी ये सीरीज। तो हमें इनफाइनाइट में तो जाना नहीं है, हमें एक एन तक जाना है, कहीं तक जाना है, एन तक। तो लूप यूज होगा एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, फॉर लूप, ठीक है। हमें ये भी पता है कि मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल ए है, सेकेंड वेरिएबल बी है। ए की वैल्यू आपने रख दी 0, बी की वैल्यू रख दी आपने 1। जो थर्ड वैल्यू है सी, वो क्या है? a + b है, तो आप इधर बोल दोगे दिस इज सी। देन फोर्थ वैल्यू क्या है? आप बोलोगे b + d, इसको b + c, तो d बना दो, c + d, e बना दो, d + e f। तो इतने सारे वेरिएबल्स हम क्रिएट ही नहीं कर सकते ना, हमें पता ही नहीं क्या n है, तो हम कैसे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे इतने सारे? ठीक है, लॉजिक समझो, बाय हार्ट होगा कोड जाने दो, लॉजिक समझो। वेरिएबल्स कितने आ रहे हैं? ए जिसका इनिशियल वैल्यू है 0, बी जिसकी वैल्यू है 1, सी जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, हमें पता सिर्फ हम इसको यूज करेंगे बिकॉज इट इज द एडिशन ऑफ ए एंड बी। एन चाहिए क्योंकि कहां तक जाना है मुझे नहीं पता, कितने नंबर ऑफ सीरीज एलिमेंट्स चाहिए। एन इज सीरीज के कितने एलिमेंट्स प्रिंट करने? 5 एलिमेंट प्रिंट करने, 10 करने, 15 करने, 2 करने। अगर किसी ने डाला सिर्फ 2 तो 0 और 1 आंसर आना चाहिए। किसी ने डाला 5, 0 1 1 2 3, इधर तक आंसर आना चाहिए, नॉट टिल 5, इधर तक नहीं, 5 एलिमेंट्स चाहिए। एंड ऑफ कोर्स लूप चलाने के लिए, इट घुमाने के लिए एक वेरिएबल आई। कोई डाउट इधर? यहां तक समझ में आ गया वेरिएबल डिक्लेरेशन तक? ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिबोनाची सीरीज पे 3 और क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिबोनाची सीरीज पे 3 और क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एक और बार रिपीट करती हूँ, सीरीज ऐसी है जो फर्स्ट टू नंबर्स को ऐड करके थर्ड नंबर बनाएगी, देन प्रीवियस टू लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करके आगे के एलिमेंट्स बनाते जाएगी। तो हमें एक एन चाहिए, पहले 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक सी वेरिएबल्स चाहिए थर्ड के लिए, और आई ये बार बार काम करने के लिए। नाउ विच इज द टास्क वी आर डूइंग? बार बार रिपीटेटिवली क्या कर रहे हैं हम ना? रिपीटेटिवली प्रिंट कर रहे हैं।
ठीक है, तो एक है सी आउट का काम, वो भी कौन सा, थर्ड सी। सी आप बार बार प्रिंट कर रहे हो, क्या प्रिंट करो बार बार, एक सी वेरिएबल। क्लियर है। दूसरा, आप है ना सी को क्रिएट करने के लिए ए और बी को ऐड कर रहे हो बार बार, यानी कि हमने बार बार क्या किया, एडिशन। ए प्लस बी जो हमने इक्वल टू सी में स्टोर किया, फिर आपने सी आउट सी कर दिया विथ सम स्पेस, या बैकस्लैश टी डाल दो या जो भी है, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि ये जीरो के बाद वन, स्पेस के बाद वन, स्पेस के बाद टू, स्पेस के बाद थ्री। तो अब तक हमने देखा दो काम हम बार बार कर रहे हैं, कौन सा, एक बार बार सी क्रिएट करने का, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। सेकेंड, जो भी सी बना आप उसको प्रिंट कर रहे हो। Now third is the most important topic, कि आप क्या करते हो बार बार। ये ना नेक्स्ट टाइम जब आपको सी प्रिंट करना है तो वो ये होने वाला है। अब तक ए प्लस बी जीरो और वन है, तो आप ये लूप में बार बार करोगे ना यही चीज, तो लूप में आपको हर बार क्या मिलेगा, वन वन वन। आई सी की वैल्यू क्या हमेशा रहेगी, वन 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 वन, जबकि सी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए ना। वो चेंज कैसे होगी, जब आप ए वेरिएबल को बोलोगे भैया तो बी का वैल्यू ले ले, सो ए इक्वल्स टू बी, एंड बी विल बिकम सी का वैल्यू। सो ओवर हियर वी हैव ए, नाउ हियर वी हैव बी, सो न्यू सी विल बिकम दिस विच इज ए प्लस बी। अगेन वी आर स्वॉपिंग, ए इधर आया, बी इधर आया, तो ए प्लस बी क्या बना, सी। ए इधर आया, बी इधर आया, ए प्लस बी क्या बना, सी। ए ओवर हियर, बी ओवर हियर, सी। ये बार बार कर रहे हैं। व्हाट आर द टास्क वी आर परफॉर्मिंग रिपीटेटिवली, एडिशन ऑफ ए प्लस बी, प्रिंटिंग सी, swapping values of a and b, swapping values of a and b, moving ahead, a और b को आगे मूव कर रहे हैं। सो फार क्लियर है, इतना पार्ट समझ में आया। आई जस्ट गॉट वन यस, हाँ गाइस, एक ही यस मिला है मुझे। ओके, नाउ वी विल सी द सेम चीज इन आर कोड। कोड में देखते हैं अभी हम इसको। वेरिएबल डिक्लेरेशंस पे फोकस करेंगे। ए विच इज इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू वन, सी एक वेरिएबल बनाना है, और आई और एन है। एंटर, एंटर क्या मांगना है हमको, नंबर तो चाहिए ही, बट क्या है वो नंबर, एंटर अ नंबर, और एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी प्रिंटेड फ्रॉम फिबोनाची सीरीज, एफएस। फिबोनाची सीरीज में से कितने नंबर प्रिंट करने वो आप डाल दो, तो एन में हमने ले लिया। फिर हमने लूप स्टार्ट किया, आई वन से लेकर जितने भी नंबर आपको प्रिंट कराने हैं, 5, 10, 15, उधर तक जाना चाहिए। तीन टास्क था, एक था सी को बनाना विच इज ए प्लस बी, सी आउट ऑफ सी with a backslash t so that it gives a nice space, and a equals to b, b equals to c। मैम a, सी आउट सी आएगा ना? sorry, yes, c out c, yes, thank you, c out c, and then this is how। अब हमने ये तीन चीजें लिख दी, सी आउट, पहले एक सी को क्रिएट किया ए प्लस बी करके, सी आउट सी किया, एंड देन ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, दिस इज हाउ। ये मेन चीजें हो गई। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम क्या है वो भी हम स्टडी करेंगे, मैं इसको रन करूंगी तो पता चलेगा। ठीक है, हमने जैम बोर्ड पे इतना समझा, इतना उसको कोड में लिख लिया, हमें लगता है ये चलना चाहिए बराबर, बट यहाँ पे कुछ चीजें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स सी व्हाई वी वोंट गेट द डिजायर्ड आउटपुट। वन सेकेंड।
So to print the Fibonacci series, I want 5 elements to be printed. So 5 elements कौन से होने चाहिए थे? 0, 1, 1, 2 and 3. मुझे क्या एलिमेंट्स आ रहा है? 1, 2, 3, 5 and 8, विच इज ऑल्सो करेक्ट. सीरीज प्रॉपर आई है कि 2 + 1 को 3 है, 3 + 2 को 5, 5 + 3 8. बट पहले दो एलिमेंट्स आए क्या? कैन वी सी द वेरी फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज? We cannot see the first two elements. So this means our loop is not capable of printing first two elements. So we will write in the loop, before going into the loop, बैकस्लैश, पहले 0 प्रिंट करो, बैकस्लैश t डालो, 1 प्रिंट करो, बैकस्लैश t डालो. अभी भी कुछ एरर आएगा. ठीक है, मैंने 5 लिखा. ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना तो 0, 1, 1, 2, 3, ये प्रिंट करने के अलावा इसने और दो एलिमेंट्स दी 5 and 8, जबकि ये 5 ही चाहिए थे ना, इधर तक क्या आना चाहिए था, है ना, इधर तक क्या आना चाहिए था, 5 और 8 नहीं आना चाहिए था. दैट इज बिकॉज हमारा जो लूप है ना n, हमने n में से दो एलिमेंट्स ऊपर प्रिंट कर दिए, तो वी वांट n टू एग्जीक्यूट 2 times लेस. कितने बार कम चलना है हमको? 2 बार कम चलना है. तो ये इस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज प्रिंट करते हो. दैट इज लूप में जाने के पहले 0 और 1 को प्रिंट करोगे. लूप हमें बिकॉज दो एलिमेंट्स पहले ही प्रिंट कर चुके, लूप विल गो n-2 times and 3 tasks which we want to perform in the Fibonacci series. Adding of a plus b to form c, print the value of c and swap the values of a and b. Now we will run this thing again. 4 लिखा, 0, 1, 1, 2, 5, 0, 1, 1, 2, 3, 5 elements. Clear है? Yes. C is also shifting ना dear, क्योंकि C आप यहाँ पे बना रहे हो A और B को, जब आपने आगे शिफ्ट किया, A ने B की वैल्यू ली, B ने C की वैल्यू ली, तो आप लूप में आके C को तो ऐड कर ही रहे हो ना. C is equals to A plus B. We are creating new C. ठीक है. So this is one way of doing Fibonacci series. I'll just show you another way of you doing Fibonacci series. ये भी उतना ही इजी है, इनफैक्ट ये थोड़ा ज्यादा इजी है. हम n-2 नहीं करेंगे, हम लूप के ऊपर प्रिंट नहीं करेंगे, हम प्रिंट ही कुछ और करेंगे. इंस्टेड ऑफ C we will print A. अब मेरे जैम बोर्ड पे ध्यान दो. मेरा ए वेरिएबल में क्या है? 0. 0 मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने सी आउट ए कर दिया. नेक्स्ट टाइम ए वेरिएबल में क्या है? 1. अगेन ए ही प्रिंट करना था, बराबर है. अगेन 1 ए वेरिएबल के पास है. नेक्स्ट टाइम वापस ए के पास 2 है, ए के पास 3 है, ए के पास 5 है, ए के पास 8 है. तो ए इज वन सच वेरिएबल जो हर बार अपडेटेड वैल्यू जो हो रही है उसकी, वो हमें प्रिंट करनी है. सो ओवर हियर लूप के ऊपर 0, 1 प्रिंट नहीं किया, n-2 नहीं किया, still we got our correct answer because we were printing A. And one thing which you have to keep in mind, because you are printing A, you cannot write this cout statement after these two lines. भले आप इसके नीचे लिखोगे चल जाएगा, इधर लिखोगे ना ये लाइन, चलेगा. बट ए और बी को स्वैप करने के पहले, मतलब बाद में नहीं लिखना, पहले लिखोगे उसकी. सी क्रिएट होने के बाद में ए प्रिंट करो, दैट इज ओके. ये वाला भी इजी है. ये समझ में आ गया क्या किया हमने इसमें?
ठीक है। होमवर्क है आप लोगों को, ये 5 क्वेश्चंस में से लास्ट के 3 राइटिंग एज वेल एज टाइपिंग दोनों करना है। Yeah, the second method is very easy than the first one. The thing is कि why I had to show you the first one because you know अब काफी सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है कि they don't use this method. ये थोड़ा easy और ये logical भी बहुत ज्यादा है. This is more logical comparative to this one. आप 0 और 1 से सीरीज शुरू हो रही है, आप सीरीज को ही लूप के पहले प्रिंट कर रहे हो 0 और 1, क्या मतलब वो है, तो मैनिपुलेशन हो गया। तो जैसे 0 1 प्रिंट करे वैसे बाकी नंबर्स भी प्रिंट कर दो। ठीक है, ये तो मैनिपुलेशन है। दिस इज एक्चुअली द करेक्ट कोड। होमवर्क है आप लोगों को लास्ट का 3, 3, 4 एंड 5, ये 3 चीज राइटिंग एज वेल एज टाइपिंग। फैक्टोरियल का कोड आएगा ईयर, बाकी सारे कोड्स मैं एक बार शो कर दूंगी, आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लो। क्लियर? ओके, सो विल वाइंड अप फॉर द डे। बाय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।